start with JDBC today. JDBC means we're doing a database connectivity. So we will have our Java application. My screen is visible, right? Yes, no, maybe guys. Not visible? Now is it visible? So we'll have our Java application which will then communicate with the database. You can have any database of your choice. Okay. So in our case, database will be MySQL. Okay. So whichever database you are trying to use, your Java application should have a driver for that database. So if you are using MySQL, we will be needing the MySQL database driver. If you are using Oracle, then we'll be needing Oracle driver. Then we can do the insert records also, or update or delete. You can find the DMLs also. You can also create a table. All that activities you can do. And we can also fetch data from the database into our Java application. You can find which query. So all these queries which we can do now. So if I have a database table called employee, having employee number, employee name and salary. Having employee number, employee name and salary. Let's say this is my database table. So we'll create this database table using JDB also. You can create a table, and then we will accept the in the Java application. We will make a scanner object, and we will say SOP enter enter employee number. So whatever he enters will store in the variable. Okay, integer e number, blah blah blah, and then enter e name, enter salary. This will be a string e name, and this will be a double salary. Okay, and then once he enters these records, we can store them in the database. So if he enters over here 18, Virat, and 800, and clicks okay and runs the application, this record will come over here. So now data has been stored in the database, correct? So how we will do that is in JDBC. So this is your JDBC taking over here, Java database connect. Okay. So let's come and let's understand the architecture of JDBC. Once you understand this slide, then 90% of your JDBC problem is solved. Okay. So for this, we will try to play a game. Okay. So we'll try to play a game to understand the concept, and then you guys can, once this slide is understood, JDBC will be easily understood.
Okay. So this is India and this is, how many rows do I have? India and India and West Africa. Okay. And here I have batsman and bowler. 3 लाख हो रहा है? 3 लाख हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा है ऐसे कुछ लाख हो रहा है. They are telling it's all good. The network मेरा full दिखा रहा है. Okay, so now I have four quadrants. I have four quadrants now. So I will give you a name of a player, and I want you to put him in the particular quadrant. Okay? तो ये हमारे पास 4 quadrant हो गए. तो आपको मैं एक नाम दूंगा प्लेयर का, आप उसको उसके quadrant में डालेंगे. Okay? So where will you put Bumrah? हाँ, quadrant में बोलो, quadrant से बोलो. सेकंड quadrant में जाएगा. Where will you put Rabada? Hmm? So let's go. He is a bowler from rest of the world. Okay, where would you put Shami? Second quadrant. Where would you put Kane Williamson? This is the world batsman, right? Where would you put Sharma? Rohit Sharma, first quadrant, है ना? तो जब ये समझ में आ गया, तो यही खेल अभी हमको खेलना है JDBC के ऊपर. अभी हम लोग पैरामीटर्स चेंज करते हैं. ठीक है. अब ये दो क्या है, क्वेरी दो प्रकार के हैं बेसिकली. एक है सिलेक्ट क्वेरी. एक क्या है, क्या क्वेरी है? सिलेक्ट क्वेरी. तो दूसरे क्या होंगे? इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया के अलावा. तो सिलेक्ट और दूसरी क्या हो जाएगी? सिलेक्ट के अलावा ना. तो इंसर्ट किस में जाएगी? नॉन सिलेक्ट. डिलीट किस में जाएगी? अपडेट किस में जाएगी? सिलेक्ट. उसके अलावा जो भी है वो क्या है? बट ये है DML में. किसमें? नॉन सिलेक्ट बट क्या? नॉन सिलेक्ट हो बट क्या हो? DML हो. क्रिएट भी क्या है? क्रिएट. ऑल्टर भी क्या है? नॉन सिलेक्ट है ना, बट वो क्या है? हाँ, तो एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है, नॉन सिलेक्ट विद DD. ओके, सो फार सो गुड. वी हैव सिलेक्ट, वी हैव नॉन सिलेक्ट, इसमें DML वाले नॉन सिलेक्ट और नॉन सिलेक्ट ऑफ DDL. ठीक है. और स्टैटिक क्वेरी और डायनेमिक क्वेरी. ओके, हो गए. अब मैं यहाँ एक लिखता हूँ क्वेरी. आप बोलो कि जिस क्वेरी के पैरामीटर्स पहले से नोन है उसको बोलते हैं स्टैटिक क्वेरी. इसके पैरामीटर्स नोन नहीं है उसको बोलते हैं डायनेमिक क्वेरी. अगर मैं बोलूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी where actor name like
अमिताभ। तो ये कौन सी क्वेरी है? सिलेक्ट है या नॉन सिलेक्ट है? सिलेक्ट है, तो ये आगे इस रो में आएगी। इसके जो पैरामीटर्स है, जिस एक्टर का मुझे नाम मूवीज देखनी है, उसका नाम पहले से दिया है कि नहीं दिया है? तो इसका पैरामीटर्स नोन है, तो ये क्या है? स्टैटिक और if I say accept the actor name and display movies of that actor. Now do I know what actor the user will enter? Display movie name of actor Amitabh. तो क्वेरी क्या होगी? क्वेरी क्या होगी? एम नेम, है ना? ये क्वेरी क्या कर रही है? डिस्प्ले मूवी नेम ऑफ एक्टर अमिताभ। इफ आई राइट डिस्प्ले मूवी नेम ऑफ अ गिवन एक्टर, ऑफ अ मतलब आपको एक्टर नेम एक्सेप्ट करना है, उसकी मूवी नेम दिखाने, तो एक्टर का नाम पता है क्या? तो अभी वो क्वेरी बनेगी ऐसे, where actor name like I do not know, so I put a question। मुझे एक्टर का नाम मालूम नहीं है, यूजर जो एंटर करेगा वो एक्टर नेम होगा। तो अब ये क्या है? सिलेक्ट है बट डायनेमिक है, तो कहाँ जाएगी वो? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। ये क्या है? सिलेक्ट और, तो जहाँ पर पैरामीटर्स आ गए वो क्या हो गई? डायनेमिक। तो डायनेमिक का सिंपल से भाषा में समझो कि वो एक पैरामीटराइज्ड क्वेरी है। क्या है? हमको उसको पैरामीटर्स पास। और स्टैटिक क्या है फिर? स्टैटिक क्या है? नॉन पैरामीटराइज्ड क्वेरी को स्टैटिक। ठीक है, तो अच्छे से याद करो उसको, इंटरव्यू में एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। ठीक है, ओके। अभी मैं एक और क्वेरी लिख रहा हूँ। अपडेट EMP set salary equals to salary plus 100 where D name like IT। क्या हो रहा है इधर? हो क्या रहा है इधर? एम्प्लॉय IT डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपीज से इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये कहाँ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि ये नॉन सिलेक्ट है और पहले से दिया है, तो कहाँ जाएगा? करेक्ट। और अगर मैं बोलूँ कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यूजर से उसका एम्प्लॉय नंबर लो, वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। अब अगर उसने एंटर किया 1 तो क्या रिकॉर्ड डिलीट होगा? एम्प्लॉय नंबर 1। उसने एंटर किया 2 तो 3 तो डू आई नो विच रिकॉर्ड टू डिलीट? I will take it from the user, so this will go where? huh? Third column, because it is a non-select query which is blank, so it goes in the third column। ठीक है, ओके। और अगर अभी वैसा करो तो क्रिएट टेबल EMP जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, लोग मालूम कैसे करते हैं टेबल क्रिएट SQL में, ये कहाँ जाएगा अभी? हाँ, नहीं यार, क्रिएट टेबल क्या है? DDL है ना, DDL। तो वो कहाँ जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा वो? फिफ्थ क्वाड्रेंट। कहाँ जाएगा? कौन से जाएगा क्वाड्रेंट में वो? एक एक क्वाड्रेंट में ऐड कर दो, एक एक क्वाड्रेंट में ऐड कर दो। एक क्वेरी क्या है? नॉन सिलेक्ट है ना, क्रिएट, बट नॉन सिलेक्ट क्या है? नॉन सिलेक्ट में कहाँ जा रहे हैं? डिटेल का DML, डिटेल। ठीक है, तो ये चार्ट से समझो। ओके, जब भी क्वेरी सिलेक्ट नेचर की होगी, क्या होगी? हम फंक्शन यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या फंक्शन यूज करेंगे? याद रखना, तो उसमें कुछ लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की बात है। बस समझ में आ गया? I'll give you a time, I'll give you a time। So whenever the queries of select nature will have which method?
select, execute query. When the method is of non-select, but it is DML, execute, update, and when the query is non-select but DDL, only execute. समझ में आया तीनों फंक्शन? एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट। कब करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी? आपका क्वेरी सिलेक्ट नेचर का, स्टैटिक हो डायनेमिक हो फर्क नहीं, बट सिलेक्ट का होगा। जब आपका क्वेरी नॉन सिलेक्ट का हो बट डीएमएल हो, यानी डीएमएल मतलब, अरे कौन से है वो? हाँ तो कौन से है वो? इंसर्ट अपडेट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है ना? तो क्या यूज करोगे? और जब आपकी क्वेरी नॉन सिलेक्ट हो पर डीडीएल हो, यानी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, है ना, अंकेट, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ओनली एग्जीक्यूट। क्या करेंगे यूज? ओनली एग्जीक्यूट। ओके, गेटिंग इट? ओके। अगर आपकी क्वेरी स्टैटिक नेचर की है, यानी पहले से आपको पता है क्वेरी के पैरामीटर्स क्या है, तो आप यूज करोगे एक इंटरफेस, उसका नाम है स्टेटमेंट। क्या है? और अगर आपकी क्वेरी डायनेमिक नेचर की हो तो आप यूज करोगे एक इंटरफेस जो कि है प्रिपेयर्ड स्टेट। When you all were doing SQL, did you all learn stored procedures? क्या तो लोगों ने फंक्शन लिखने का PL/SQL में पता PL/SQL था? तो did you all learn procedures, function, cursor, trigger? You all know ना? So if you want to call that function which is in PL/SQL in your Java code, then we have callable statement. When do we use callable statement? If you want to invoke a call a PL/SQL stored procedure, then I will go with callable. So you have these three, ये सब इंटरफेस, ये सब क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करेगा? टेबल में से एक पोर्शन ला के देगा आपको। अगर आपका ये टेबल है, दिस इज द टेबल आई हैव, एंड इफ आई राइट द क्वेरी सिलेक्ट कस्टमर नेम, टेबल का नाम कस्टमर है, वेयर सिटी लाइक दिल्ली, तो क्या आएगा आउटपुट? बताओ आउटपुट क्या आएगा? तो जब आप सिलेक्ट क्वेरी फायर करोगे तो कुछ आउटपुट आएगा ना? तो वो आउटपुट क्या आएगा? तो वो एक टेबल का पोर्शन ही आएगा ना, टेबल का एक सबसेट आएगा, एक टेबल का सबसेट आएगा वो। यस, नो, मे बी आएगा। ये टेबल का एक सबसेट है, इसको होते हैं रिजल्ट सेट। क्या होते हैं? तो जब सिलेक्ट क्वेरी होंगी तो जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? एक, तो जो भी स्टोर होगा वो एक रिजल्ट सेट में स्टोर होगा। इसके लिए सिलेक्ट क्वेरी का जो LHS होगा क्या होगा? वो क्या होगा? एक, वो एक कर्सर जैसा काम करेगा। कैसा काम करेगा? will work like a cursor. So now I have to iterate this result set to display the data. तो सिलेक्ट क्वेरी क्या रिटर्न करेगी? हमेशा एग्जीक्यूट। जब भी हम एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो LHS में क्या होगा? रिजल्ट सेट का, क्योंकि वो
क्या करेगा, टेबल में से कोई डेटा पास देगा ना। अगर मैंने इसको यहाँ पर ये क्वेरी को चेंज कर दिया, तो आई कैन नॉट से कि डेटा जो रहेगा वो इंट रहेगा, क्या रहेगा, फ्लोट रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई कॉन्फ़िगर माय क्वेरी। इफ आई राइट सिलेक्ट स्टार, देन अभी आउटपुट क्या आएगा, ये पूरा आएगा। और ये पूरा आएगा, ये सुनो। तो ये सब किसमें स्टोर होगा, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसमें स्टोर होगा, एक रिजल्ट सेट में। ओके, इसके लिए क्वेरी बदलेगी, रिजल्ट सेट बदलेगा। क्वेरी बदलेगी, क्वेरी अगर सिलेक्ट कस्ट नेम है तो रिजल्ट सेट में से इतना है, और सिलेक्ट स्टार है तो फिर हम इस रिजल्ट सेट को लाइन बाय लाइन करते हैं, इटरेट। क्या करते हैं, लूप लगा के, लूप लगा के क्या करेंगे, इसको हम लाइन बाय लाइन क्या कर देंगे, इटरेट करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो पे जाएगा, फिर वो डिस्प्ले करेगा, फिर सेकंड रो पे जाएगा, फिर वो डिस्प्ले करेगा, ऐसे एंड तक। ओके, तो execute query will return you whatever data will be stored in the result. अब अगर मैं लिखता हूँ ये क्वेरी, IT समझो, डिलीट ऑल द कस्टमर्स स्टेइंग इन दिल्ली, क्या लिखूंगा मैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर where city like, सही है। तो ये कितने रिकॉर्ड डिलीट करेगा, 2। तो इसके लिए एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप इंट वैल्यू है, which means the number of rows the query has impacted। क्या है रिटर्न टाइप, and what will that integer store, the number of rows the query has impacted। तो ये क्वेरी देख, अगर IT डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो कितने लोग की सैलरी बढ़ी, 4। तो व्हाट इज दिस क्वेरी रिटर्न, अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर पास किया 1, तो कितने रिकॉर्ड डिलीट करेगा ये, 1। तो वो 4 1 क्या है, इंटीजर है। तो एग्जीक्यूट अपडेट का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। और एग्जीक्यूट क्वेरी, और एग्जीक्यूट जो है ये वॉइड फंक्शन, क्या ये, मतलब इसका कोई रिटर्न टाइप है नहीं, है वॉइड फंक्शन। समझ में आ गया खेल पूरा, यस और नो। अब हम लोग एक और चीज स्टडी कर लेते हैं। ये है मेरा, ओके अपन ने किया है इसके साइड में, ये किया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट से कि ये 2 सिटीज है, ये सिटी ए है और ये सिटी बी है। जावा कोड सिटी ए है और डेटाबेस सिटी। अब इन दोनों सिटी में ट्रेड और कॉमर्स शुरू करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना है। तो क्या करेंगे, लेट से जस्ट नई सिटी एस्टैब्लिश हुए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों सिटीज को कनेक्ट करेंगे कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट मीडियम से, रेलवे ट्रैक से, एक्सप्रेस वे से, कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले दोनों सिटी में होगा एस्टैब्लिश कनेक्शन। क्या होगा, तो जावा के अंदर इसको क्या बोलेंगे हम, कनेक्शन, डेटाबेस लैंग्वेज। ओके, अब कनेक्शन तो हो गया। अब मुझे माल भेजना है और मंगाना है, क्या लगेगा मुझे, ट्रांसपोर्ट। क्या लगेगा, क्या लगेगा अभी, ट्रांस, वो जो ट्रांसपोर्ट है वो है आपका स्टेटमेंट। क्या है, ठीक है। अब अगर मुझे भेजने मोबाइल सिटी ए से सिटी बी, मोबाइल बनते सिटी ए में है
और सिटी बी में शोरूम्स है। तो मैं क्या करूँगा, विल आई डंप ऑल द मोबाइल इन द ट्रक like we dump sheep, like we dump sand, and like we dump brick? You will take up soda and then we'll put all the mobiles. What will you do? You will put them in a packing. You will put them in a packing. ये पैकिंग जो है ये आपकी क्वेरी। पैकिंग क्या है आपकी, और इस पैकिंग के अंदर जो मोबाइल है वो आपका डेटा है। मोबाइल है वो क्या है आपका, बोलो भाई, डेटा। तो चार समझ में आ गया एनालॉजी है। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, कनेक्शन। जब कनेक्शन बन जाए तो फिर स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट स्वाद अनुसार, स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी। So if it is a dynamic query, so if I ask you accept the employee number, employee name and salary and store in the database, so now you will accept the employee number, employee name, salary from the user. What will you use, which statement? Prepared statement. And if I say create a table, then what will you use? Statement, because create table में कोई पैरामीटर्स की जरूरत है नहीं। तो आपको जो टाइप का ट्रक चाहिए आप उसके हिसाब से लोगे। तो अगर मुझे डेयरी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है गुजरात से लेके बम्बई तक, डेयरी प्रोडक्ट यानी मक्का, तो क्या यूज करूंगा मैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक। जिस ट्रक में क्या है, मेडिसिन ट्रांसफर करने हैं, वैक्सीन ट्रांसफर करने हैं, क्या करूंगा मैं, रेफ्रिजरेटेड ट्रक। और मुझे ईट ट्रांसफर करने हैं, ब्रिक ट्रांसफर करने हैं, ब्रिक सैंड, तो क्या करूंगा मैं, नॉन रेफ्रिजरेटेड। तो ऐसे ही ट्रक जो है वो कमोडिटी पे बेस पे हम चूज करेंगे। हाईवे तो वही रहेगा बट ट्रक विल चेंज बेस्ड ऑन द कमोडिटी। Likewise, depending on the query, my statement will change. If it is a static query, I will use statement. If it is a dynamic query, I will use. Then I will first put all the data into a query, and then put the query on the statement and put the statement on the highway. और ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रवाना कर देंगे, ठीक है। तो ये चला गया इस वाले लॉजिक में, और ये चला गया इधर। अब उसने माल डिलीवर कर दिया, पार्टी ने कैश दिया, वो वापस कैश भी लेके आएगा और कैश किसको आके देगा, सिटी वाले सेठ को। वो कैश को डाल देगा तिजोरी में। कैश को डाल देगा सेफ में, है ना। तो ये जो सेफ है ये क्या है, ये रिजल्ट सेट है। क्या ये, वहां से जो आ रहा है वो किस में आएगा, हमेशा रिजल्ट सेट में आएगा। किस में आएगा, डेटा से जो आ रहा है वो क्या आएगा, रिजल्ट सेट में आएगा। समझ आ गया खेल पूरा ही। अब एक बेसिक जेडीबीसी का प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ड्राइवर लगेगा। तो अगर आप यूज कर रहे हो माई एसक्यूएल और वर्जन आपका 8.0.33 है मोस्ट ऑफ यॉल का, तो आप अकॉर्डिंगली आपका ड्राइवर लोगे। मेरा जो माई एसक्यूएल वर्जन है तो इसका ड्राइवर लगेगा आपको। वो एक जार फाइल होती है, क्या होती है, जार फाइल होती है। ड्राइवर मतलब उसको अपने एप्लीकेशन में ऐड कर देना बिल्ड पाथ में जाके, ठीक है। मेरा जो माई एसक्यूएल वर्जन है वो 5.1.15 है। कौन सा है, तो मेरा जो लगेगा ड्राइवर जार फाइल वो उस वर्जन की लगेगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी यूज कर रहे हो अपने हिसाब से यूज कर लो। सो लेट मी फर्स्ट गो एंड सर्च फॉर माई जार फाइल। So this is what I mean by the driver jar file. This is for my database. This is for you guys database. I'll share this across on the Telegram. You can use it. So whenever you will make a database program, you can use in the same folder also. RTA batch, है ना। एक नया पैकेज बना देंगे JDBC में। JDBC program,
Okay, so first thing first, in your project, whatever is the project you have made over here, जो टॉप में आता है ना अपना इधर आर्टिफैक्ट, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। राइट क्लिक करो, बिल्ड पास करो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पास करो। ठीक है, ये सिस्टम लाइब्रेरी ले लो और बोलो ऐड एक्सटर्नल जार, क्या बोलो, और जाके फिर वो जार को ऐड कर लो। विद जार आई विल ऐड। ठीक है, यहाँ आ गया। आप लोग क्या ऐड करेंगे, तो पहला ये काम कर लेना। ठीक है, फिर दूसरा पैकेज बना लिया। ओके, और एक नई क्लास बना दी, JDBC डेमो। ठीक है, नेम डाल दिया उसको। अब हमको वो ड्राइवर लोड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन में, तो रिफ्लेक्शन यूज करते, क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन यूज करते। और जब भी प्रोग्राम अपने प्रोग्राम से बाहर जब भी डेटा जाएगा, फाइल में जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, डेटाबेस पे जाएगा, चेक एक्सेप्शन थ्रो होगा ही होगा। क्या होगा, चेक एक्सेप्शन थ्रो होगा ही। तो इसके लिए क्या कर लो, इधर क्या कर लो, हाँ क्या कर लो, ओके। तो हम लोग ओके, तो इसके लिए है ना, आप कोई भी साइट पे जाके देख लोगे ना, जावा, ओके, JDBC सैम्पल प्रोग्राम विथ माई एसक्यूएल। ठीक है, तो कोई भी ले लो, ये अच्छा टी पॉइंट पे चले जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये क्लास डॉट फॉर्मेट, तो पहले तो लिख दो थ्रोज एक्सेप्शन। क्या लिख दो, क्लास के आगे थ्रोज एक्सेप्शन। ठीक है, पेरेंट को थ्रो कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो ड्राइवर हमने ऐड किया है उसको प्रोग्राम में लोड करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्लास डॉट फॉर नेम करके है, क्लास डॉट फॉर नेम आ गया। और यहाँ पर स्ट्रिंग से आपका ड्राइवर को लोड करना है। ठीक है, तो ड्राइवर आपका MySQL का कौन सा है वो आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा। देखो दिख रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, बस स्ट्रिंग लेना है और अपने को यहाँ लोड कर देना है। ओके, दूसरा हमको फिर डेटाबेस क्रिएट करना है जिससे हम लोग काम करेंगे, तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, so what database do you all want to work on, what should be, see these are all my database names, so ITP B2DB, क्या दिया मैंने, ITP batch2 database. Okay, you can give any name and create. In your MySQL you all have done that, right, create database name. So now we have come in this, so you have to remember on which database you are working on. लोड कर दिया। ये ड्राइवर ओल्ड वर्जन के लिए ठीक है, जो मेरा है। आप लोग का जो ड्राइवर आएगा, जो आप लोग लेटेस्ट वर्जन पे यूज कर रहे हो, उसमें आप लोग को सिर्फ एक चीजें ऐड करना है एक्स्ट्रा। क्या ऐड करना है, MySQL और JDBC के बीच में डालना है CJ। ठीक है, और जावा जैसा एब्रीविएशन है CJ डॉट ये किसके लिए है, जो लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 8 ऑनवर्ड। आप लोग ये ड्राइवर ले लेना, मैं दोनों लिख के दे रहा हूँ। एक बार ड्राइवर आ गया, फिर आप लोग को हाईवे लगाना है। क्या लगाना है, हाईवे। तो हाईवे क्या है, कनेक्शन। आप जैसे कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे कनेक्शन आपको। देखो कितने सारे कनेक्शन है। आपको लेना है जावा एसक्यूएल से, किसे लेना है, और उसको जो भी आपको नाम देना है आप नाम दे दो, मैं दे रहा हूँ कौन। फिर एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर, इसका एक फंक्शन है गेट कनेक्शन।
अब यहाँ पर आपको तीन चीज़ें पास करनी है, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, सिंटैक्स कैसे लेना है आप कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है, ऐसा देखो ये दिख रहा है ये। तो JDBC माई एसक्यूएल लोकल हो 330 ये फिक्स रहता है, ये आपके डेटाबेस का नाम है। क्या है, तो कॉपी पेस्ट कर लो, अच्छा रहेगा टाइप करने से बजाय, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। मेरा यूजर नेम रूट है, मेरा पासवर्ड ब्लैंक है, तो मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। और मेरा क्या हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन ओपन भी हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब लेट्स से मैं टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं क्या लूँगा, स्टेटमेंट का प्रीपेड स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में और प्रीपेड स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है कि स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट पहले क्वेरी बाद में। क्या है, ऑब्जेक्ट पहले और क्वेरी बाद में। इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड क्वेरी लेटर। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में रिवर्स ऑर्डर, प्रिपेयर स्टेटमेंट में रिवर्स ऑर्डर है। क्या, क्वेरी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट बाद में आप बनाओ, पहले आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, क्रिएट टेबल के लिए स्टेटमेंट। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ठीक है, इसमें आप दोनों भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पहले या बाद दोनों भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों वाला भी ऑप्शन चल जाएगा, ये ऑप्शन भी चल जाएगा इसके अंदर, बट इस पर नहीं चलेगा, इस पर दोनों भी काम चल जाएगा। आपके ऊपर है, आपको क्वेरी कब बनानी है, पहले बनानी है बाद में बनानी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। तो जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो ये फॉलो करते हैं, कौन सा, क्वेरी फर्स्ट वाला। ठीक है, ताकि दोनों जगह चल जाए, अपने को बार बार चेंज ना करना पड़े। तो क्वेरी बनाएंगे फिर, तो क्वेरी क्या होगी, क्रिएट टेबल से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर एक क्वेरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलो फटाफट, बोलो, क्रिएट टेबल, क्या नाम है, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, एम्प्लॉय बना लो। फिर नो इंटीजर ऑफ 5, ये मेरे वर्जन में डेटा साइज देना पड़ता है, आप लोग के वर्जन में साइज देने की जरूरत नहीं। और प्राइमरी की रहेगी वो, प्राइमरी की यहाँ पे दे सकते हैं कॉलम के बाजू में भी, या लास्ट में प्राइमरी के लिख के दे सकते हैं। ठीक है, ई नंबर, ई नेम, वैर कैर ऑफ 10 नॉट नल दे दो, और सैलरी क्या दे दो, डेसिमल दे दो। क्या दे दो, डेसिमल। अब अगर मैंने लिखा है 8000.0, टोटल कितने कितने डिजिट है इसके, 5 5, उसमें जो डेसिमल वाले कितने हैं, अब टोटल कितने डिजिट है, और डेसिमल वाले कितने, डेसिमल वाले, तो हम ऐसा दे देंगे। ठीक, ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई, अगर मैं ये कमांड कॉपी करूँ तो ये मेरी टेबल क्रिएट कर देता है, एक टेबल बन गई एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और ये पूरा का पूरा कमांड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ डबल कोट्स में, और एम्प्लॉय की जगह पे EMP कर देता हूँ, ताकि कोड डुप्लीकेशन ना हो, और यहाँ सेमी कॉलन दे देता हूँ। ठीक है, पूरा बस कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ऑल गुड, क्वेरी बन गई। ओके, अब क्या चाहिए, स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट फ्रॉम SQL पैकेज। ओके, देखो एक स्टेटमेंट माई SQL का भी है, देखो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ST, और उसको यूज करने का कनेक्शन, आप क्या करने का यूज, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्या है, और क्रिएट स्टेटमेंट नॉन पैरामीटराइज रहे, क्या रहेगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट O करता हूँ,
जरा 3 स्टेटमेंट है, माई एसक्यूएल, जेडीबीसी, बीन्स और एसक्यूएल। कौन सा लेना आपको? ये वाला लेना। कौन सा लेना है बेटा? जावा एसक्यूएल। ठीक है। और जब भी स्टेटमेंट बनाएंगे तो नॉन पैरामीटराइज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ठीक है। और अब इस स्टेटमेंट से क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्वेरी किस टाइप की है? क्वेरी किस टाइप की है? तो फंक्शन क्या है उसके लिए? एग्जीक्यूट। डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट हमारा एस टी तो क्या कॉल कर देंगे? एग्जीक्यूट कॉल कर देंगे। और कौन सी क्वेरी रन कर रहे हैं हम लोग? ठीक है। और फिर सिस आउट कर देंगे टेबल क्रिएटेड। और फिर उसके बाद में क्लीन कोडिंग के लिए एस टी को भी क्लोज कर देंगे और कनेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। क्योंकि ये हैवी ऑब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है। लेट्स सेव इट एंड लेट्स नाउ ट्राई टू रन एंड चेक। क्लास डॉट फॉर्म में डायमेंजर भी डाल दिया, टेबल भी डाल दिया, बराबर है, एवरीथिंग विल बी गुड। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। It says table created, and when I come over here and refresh my database, it should show me 2 tables. आ गया? अभी इसमें कुछ है नहीं, खाली टेबल है और टेबल बन चुकी है ना? ये नंबर ये ने वहाँ आ गया। सेकंड टेबल को हम ड्रॉप कर सकते हैं। एम्प्लॉय टेबल आ गया। सिंपल सा है ये। ठीक है। अब इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड जो इंसर्ट करूंगा मैं करूंगा 1 एलिस 800। क्या करूंगा मैं? तो मुझे लेना है यूजर से, पहले से वैल्यूज मालूम है। 1 एलिस 800 बोल दिया ना, अभी क्या लेगा यूजर से? मालूम है। तो स्टैटिक का डायनामिक ये पहले से मालूम है ना, कुछ लेना नहीं यूजर से। तो क्या करेंगे? अभी एक न्यू क्लास बनाएंगे, स्टैटिक इंसर्ट। ठीक है। या कर देंगे इंसर्ट यूजिंग स्टेटमेंट। ओके। नाउ जो शुरू का 2-4 लाइन का कोड है वो कांस्टेंट रहेगा। ये जो रहेगा ना, इतना ये फिक्स रहेगा। तो ये कोड हर जगह लगेगा अपने को। ठीक है। तो मैं ये निकाल रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक बार पुश कर दूंगा तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा। ये क्यों बूम मार रहा है? क्योंकि जेडीबी से हमेशा क्या करेगा? चेक एक्सेप्शन थ्रोज करेगा। सही है। डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ मेन। आ गया 1 and 2। देन नाउ विल प्रिपेयर द क्वेरी। व्हाट क्वेरी विल यू प्रिपेयरिंग? इंसर्ट इनटू emp values 1 alice or 800. Now to fire this will require a statement st equals to what will you use to make the statement? ट्रांसपोर्ट किसे चलेगा? हाईवे पे। हाईवे कौन है? तो इसका ऑब्जेक्ट लगेगा अपने ऑन डॉट क्रिएट स्टेट। क्रिएट स्टेटमेंट हमेशा नॉन पैरामीटर है। क्या रहेगा? हमेशा ऑलवेज नॉन पैरामीटर। इसके लिए आप चाहो तो इसको कंट्रोल शिफ्ट उठा लो इसके लिए आप चाहो तो इसको क्वेरी के पहले भी क्रिएट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपको। इसका कोई डिपेंडेंसी क्वेरी पे नहीं है कि क्वेरी होंगी तो बनेगा स्टेटमेंट। आप पहले भी स्टेटमेंट बना सकते हो, बट प्रीपेड स्टेटमेंट को आपको क्वेरी पहले बनाना पड़ेगा कंपलसरी। स्टेटमेंट में आपको ऑप्शन मिलता है, इसके लिए इसका नॉन पैरामीटर होता है। ठीक है। ये क्वेरी हो गई। अब ये क्वेरी करना है एग्जीक्यूट। तो क्या करेंगे? एस टी डॉट कौन सी क्वेरी है ये? कौन सी क्वेरी है ये इसमें से? So which function to use? Execute
update st dot execute update। और अभी यहाँ हमको क्वेरी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। while execution pass the query as a parameter। so while creation statement is always non parameterized always, and while executing we will have to pass the query as a parameter। अब ये क्वेरी हो गई एग्जीक्यूट, तो कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए? 1, तो आ जाएगा LHS में। अभी रोज में क्या है? तो अगर रोज में मोर देन 0 है, मतलब क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड इंसर्टेड, क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अगर नहीं है तो रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। सही है। और जो बचे कुछ 2 चीज थी, हर बार वो तो करना ही है, ठीक है। तो पहले ट्रक को समेटेंगे, फिर हाईवे को समेटेंगे। सेव हो गया। लेट्स राइट क्लिक एंड लेट्स रन दिस एंड चेक। इट says record inserted, and let's go and click on the EMP, and you should be able to see the record. Okay, if I run it again now to Ben और 900, तो क्या आएगा? क्या आएगा? रिकॉर्ड इंसर्टेड और रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। अभी ये कोड, so now what if I want to add multiple at one go? So I made the statement, I'll make multiple queries. If I want to add 5, 1 2 already there, 3 4 5 6 7, Chris, David, Elstead, Frank, George. Okay, so query 1, query 2, query 3, query. And then what will I do is, to this ST, I will add batch. And what? And add all the queries. Query 1, query 2, query 3, query 4. Added, and then I will execute the batch. Execute the execute. And what will this execute batch give me? How many records has the first query inserted? This has impacted how many rows? 1. This has impacted how many rows? So it will give me a array of integers, and that array will have how many indexes? 5 indexes. 0 1 2 3 4, and each will have the value as the number of rows impacted by that query. Okay, and so here you can say if rows or direct dot
length is greater than 0, then you can say rows dot length record insert. Okay, so let's save this now. Let's run it. So what it is saying? File record insert. And if you go to the database, you can go and cross check. Let me open the database for you guys. Which database did we make? What are the database? ITP what? Let's refresh this over here. That should show us all our databases. Which one? ITP इधर है ITP B2DB और उसमें एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें कितने रिकॉर्ड देखेंगे? अभी 7 रिकॉर्ड है. आगे तो ये है.